Assalamualaikum. This is Dr. Noor from NW Consultancy, and today I'm going to walk you through the step-by-step process on how to, what are the basic requirements of Indiana Dental Hygienist Route, which will be released effectively on 1st of July 2026. Thank you so much, everyone, for your overwhelming response on BDS support group where I posted that I know one such sort of a pathway. Thank you for trusting me, honestly. But today I'm going to walk you through the step which can help you find about all this pathway all by yourself without the need of any consultant, without need of any senior, any supervisor, or even without my help, right? So let's get started. I will be walking you through official website as well so that you can have a clarity on what this pathway exactly look like. So I'm starting with a general Chrome, Indiana Foreign Dentist as dental hygienist. Since AI is actually telling you that it will be starting on July 1st, 2026, and foreign dentist in Indiana can obtain a dental hygiene license. Acha. A lot of people also commented that I am just like making shit out of it just because this pathway is not talking about practicing dentistry after BDS specifically in USA, but it's talking about how to practice as a dental hygienist after BDS. So it's common sense. Obviously, USA does not allow anyone out of USA to practice in US without a DDS or a DMD degree. So it's really common sense that one should opt for any other routes in dentistry in order to practice through this specific route. बट इसमें क्लू क्या है? क्लू ये है कि जब भी आप डेंटल हाइजीनिस्ट के रूट को भी परस्यू करते हो कहीं भी किसी भी बाहर ममालिक में, तो होता ये है कि आप वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हो और वहाँ से 2 साल का कोर्स करते हो। स्पेसिफिकली अगर आप यूएसए की बात करो तो आप कोडा एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेते हो और वहाँ से आप 2 साल का कोर्स करते हो, फिर लाइसेंशियर पाथवे एग्जाम पास करते हो और उसके बाद आपको एंट्री दी जाती है। यहाँ पर क्या है, आपने कोई कोर्स वोर्स नहीं करना, आपने $1,000 स्पेंड नहीं करने और आप डायरेक्टली सिर्फ जो है एग्जाम देकर आप एलिजिबल हो जाओगे टू प्रैक्टिस एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट इन यूएसए, विच इज one sort of a very golden pathway for any foreign dentist if they want to move to USA. ऑलराइट, अच्छा, लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपका वीज़ा स्टेटस क्या होना चाहिए, क्या वो स्पॉन्सर करेंगे या नहीं करेंगे। तो बहुत क्लियर सी बात है, इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी लाइसेंशियर एग्जाम इन द वर्ल्ड आफ्टर बीडीएस एज वेल और आपको डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करनी है, फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपको एडीसी पार्ट 1 एडीसी पार्ट 2 क्लियर करना पड़ता है। यहाँ लेट्स टेक यूएसए, ठीक है, यूएसए के लिए आपने क्या करना पड़ता है, आईएनबीडी पार्ट 1 क्लियर करना पड़ता है और उसके लिए आपके पास आपको आपका जो एग्जाम सेंटर होता है वो यूएसए में होता है, आपने वहां जाकर एग्जाम देना होता है। इसके लिए आपको एक वैलिड यूएस विजिट वीजा चाहिए होता है, ऑब्वियसली, राइट। इसी तरह यहाँ के लिए भी आपको एक वैलिड यूएस विजिट वीजा चाहिए होगा। या तो आपने बीडीएस पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या नेपाल से किया हुआ और आप वहां मूव हो गए हो विद फैमिली on family immigration, maybe you have got a green card, maybe you are on H1B1 visa through some other routes after dentistry, or maybe you have a valid visit visa, ठीक है। तो आप इस पाथवे को बहुत अच्छे से अवेल कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आपके पास नहीं है इन सब में से कुछ, तो इट्स गुड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्क। इंसान जब तक जिंदगी में रिस्क नहीं लेता तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। विजिट वीजा अप्लाई करने के जो चार्जेस होते हैं वो 55,000 रुपीज है। जो स्पेसिफिकली अभी जो मसला चल रहा है जंग की वजह से, इंडिया ईरान यूएस वॉर की वजह से, US embassies in Karachi are closed for now, सही है। So you might it might get open if successfully ceasefire हो जाता है, तो it might get open in a week or two। तो आप जो है आप अपना क्या करोगे, DS-160 का फॉर्म फिल करोगे, which is US visit visa का फॉर्म आप फिल करोगे, which will cost you 55,000 रुपीज। रीजन आपका सॉलिड होना चाहिए। आप जब वो फिल कर लोगे, आपको एक डेट दी जाएगी, आप उस डेट पर जाकर इंटरव्यू दोगे एंड देन यू विल गॉट अ US विजिट वीजा एंड योर पासपोर्ट विल बी स्टैम्प्ड। इसके अंदर एक कैच ये है कि जो यूएस विजिट वीजास की डेट मिलती हैं वो मिल रही हैं आपकी जनवरी फरवरी 2027 की। आप क्या कर सकते हो, आप किसी कंसल्टेंट को या किसी भी बंदे को हायर कर सकते हो जो कि आपको अर्ली डेट्स मिला दे विद इन 2 to 3 months ऑफ योर एप्लीकेशन और अप्लाइंग फॉर योर आफ्टर यू हैव अप्लाइड फॉर योर यूएस विजिट वीजा, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं विच यू कैन एक्सप्लोर। If you want NW consultancy services for applying to DS once applying for DS 160, you may reach out to us. We are we'll more than welcome you.
for this specific pathway and for this specific route. Okay, let's move to the straight point that we are going to talk about today. It's Indiana's specifically this specific sort of a rule. अच्छा, it's a game changing rule for all foreign trained dentists. For example, कोई ग्रेजुएट हुआ है, बहुत पैशनेट है यूएस जाने के लिए, अब उसको डीडीएस और डीएमडी की डिग्री नहीं करनी, तो इट्स एन आइडियल थिंग. अच्छा, ये जो है आपका स्पेसिफिकली इफेक्टिव होगा ऑन 1 जुलाई 2026 और इंडियाना हाउस ऑफ बिल 1254 के अंडर ये सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी for foreign trained dentists, and they could apply for dental hygienist licensure in the specific state. So I guess so it's mentioned over here. All right, and now let's break it down. Okay, the key points for this specific pathway is that as an international trained dentist, you'll apply for dental hygienist license. Okay, देखिए, if you have spent a lot of money specifically in Pakistan and you really want to move to US through shortcut, this is the ideal pathway. ठीक है, you'll apply for your dental hygienist license, then you'll practice under US standards without repeating the full dental school, which is the DDS or DMD degree, and you'll enter the workforce significantly faster. Once you've entered, maybe if you want to, give DDS or DMD and want to practice full-fledged in USA, you may switch to that route anytime, whenever. All right. So it's a bridge pathway. So what are the benefits? For years, international dentists faced a frustrating reality. They have to repeat 2 to 3 years of dental school in the US. And they have to spend about 150,000 to 300,000 plus. And they have to compete for limited advanced standing seats. So residency की seats आसानी से नहीं मिलती हैं. They have to spend a lot of amount. अगर लोन्स मिल भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी लोन्स गिविंग कंपनी, तो वहाँ पे आपको लोन्स आसानी से मिल जाते हैं. आपको लोन्स मिल गए इफ यू हैव समवन ऑन पीआर इन यूएस, ठीक है, आपको लोन मिल गया, चलें आपको आपकी फुल डिग्री जो है वो लोन पर आपने कर ली, लेकिन यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 4 years और 5 years, जिसके अंदर आपने लोन उतारना होता है. आप नहीं उतारोगे, उस पर आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा विच इज सर्टेन अमाउंट और मार्कअप के साथ, जिस तरह आपकी मोर्गेजेस वगैरह होती हैं, इस तरह का सीन होता है. अब जब वो सारी चीजें लगती हैं तो एक इंसान के दिमाग पर एक कांस्टेंट हसल होती है, यार मैंने तो पैसा उतारना है, मैंने मेरे सूद लग रहा है, मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, लाइक दिस कैचेस यू इन अ विशियस साइकिल, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान की और यूएस की करेंसी में बहुत हद दर्जे डिफरेंस है, सो यू हैव टू वर्क a lot too much. So yes, so this law effectively bridges the pathway into US dentistry. It's a financially viable option and it's a stepping stone towards full licensure later. आप पैसे जमा कर लो, फिर आप डीडीएस के अंदर एनरोल कर लो, किसने रोका है आपको, ठीक है. This will be effective on 1 July 2026 and you can find complete information in Indiana Professional Licensing Agency website. I'll walk you through that as well. ठीक है. अच्छा, what is the difference between a dental hygienist and a dentist? सही है. So a dental hygienist can perform oral health assessment, periodontal assessments, scaling and root planning, polishing teeth, interpret dental radiographs, can provide preventive agents, administer local anesthesia, apply nitrous oxide sedation, oral hygiene instructions, and document findings and referrals. And other than that, everything will be done by the dentist. So, who is eligible for it? Any person with a foreign dental degree, which is a BDS degree from Pakistan, India, Nepal, whoever, they are eligible for that. Everyone listening to me is eligible. You have to get your degrees evaluated from an approved credential evaluation agency, which could be like members such as ECE, VES, or Joseph Silney. स्पेसिफिकली जो आपकी INBD की असेसमेंट होती है वो ECE के थ्रू होती है, और वेस्ट की असेसमेंट स्पेसिफिकली कनाडा में यूज होती है, बट यहाँ पर भी कोर्स बाय कोर्स वेस्ट इवैल्यूएशन आपको ऑफर करता है. ओके, जो कि आपकी डिग्री को यूएस डेंटल डिग्री के इक्विवेलेंट करार देगी या नहीं देगी. सही है. Okay, then you have to give your English proficiency test, which is TOEFL or IELTS. TOEFL is specifically accepted in US, so you have to give TOEFLs. You have to clear required examination, जो आपको मैं अभी नीचे बताऊंगी, and you have to apply to Indiana State Board of Dentistry उनकी official website पे जब वो खोले, और आपको background check के through गुजरना पड़ेगा, which will check your criminal record. ठीक है. What exams do you need to pass to become dental hygienist in Indiana? You have to clear these pathways, which is NBDHE exam, which is National Board Dental Hygienist exam, then clinical board exam, which could be state or regional test, and then Indiana jurisprudence exam. Okay, so NDBHE exam is a 350 question computer based test. ठीक है, 350 सवाल आएंगे जो कि साइंटिफिक बेसिस पर होंगे, प्रोविजन ऑफ क्लिनिकल डेंटल हाइजीन सर्विसेज पर होंगे और कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर बेस्ड होंगे. ठीक है. सो दिस इज मैनेजेबल बाय ऑल द फॉरेन ट्रेन्ड डेंटिस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने डेंटिस्ट्री की डिग्री ली है, तो इट्स इजी फॉर देम. Okay,
पासिंग रेशियो इसका बहुत अच्छा है, 82 to 85%, and NBDHE is offered multiple times a year at multiple prometric centers in the US. ठीक है। देन स्टेट और रीजनल क्लिनिकल बोर्ड एग्जाम्स जो कि आपके मेजर टेस्टिंग बोर्ड्स होते हैं, CRDTS, WREB और ADAX। ADAX इज वन ऑफ द मेजर बोर्ड, अमेरिकन डेंटल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, ये आपके क्लिनिकल एग्जाम्स लेगा ताकि दे कैन असेस योर हैंड्स ऑन एबिलिटी। Then there comes Indiana jurisprudence exam that will assess your state specific dental ethics and law ताकि you know what to do and what not to do. What's the cost breakdown, which is one of the most specific factor. एक कॉस्ट फैक्टर तो मैंने आपको इनिशियली बता दिया है कि आपको जो है वैलिड विजिट वीज़ा चाहिए होगा। मे बी इफ़ यू आर इन US, दिस इज़ एन आइडियल पाथवे। आपको अपनी वेस्ट से या ECE से अपनी क्रेडेंशियल एवेलुएशन करानी होगी जो कि $200 से $400 के दरमियान होगी। टोफल देना होगा विच इज़ $220 to $250 के दरमियान। NBDHE exam which is $475, regional clinical board exam $1,000 to $1,800, board prep courses और study materials के total charges इन्होंने NBDHE के और regional exam के लगाए हैं, वो $1,500 तक लगाए। फिर application fees for licenses up to $150, background check is $75, document translation could take about $500। तो ये 5 से 5,000 रुपए तक का आपका जो है estimated budget आएगा। अगर मैं इसको PKR के अंदर कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं तो आपको एक आसानी हो जाएगी कि कितने पैसे लगेंगे into PKR। ओके ओके, तो 25150 USD इज 14,38,000 और इसके अंदर भी वीजा कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, सो इट्स अ टेंटेटिव कॉस्ट, लाइक इट कुड कॉस्ट यू बिटवीन 7 लाख टू 14 लाख। और इसके अंदर अगर आप एयर फेयर कॉस्ट और ये सब चीज़ें ऐड कर दें तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 18 to 20 लाख रुपीज। सही है, क्योंकि आपने वहां जाकर रहना भी है, आपने एयर ट्रैवल भी करना है, तो ये सारी चीजें आपकी लग सकती हैं। तो अप टू 20 लाख रुपीज तक का आप अपना माइंड बनाकर रखिएगा। ओके अच्छा, और आगे देख लेते हैं। There are different visa options for foreign trained dentists pursuing this pathway. One is H1B, which is low feasibility dental hygienist may qualify. They need to get it from a sponsor. F1 का ऑप्शन होता है, बट अगेन इट मस्ट बी रिलेटेड टू सम डिग्री और फील्ड। देन ग्रीन कार्ड, H4 वीजा एंड L2 वीजा। आई टॉक अबाउट L2 वीजा एंड ऑल दीज वीजाज लेटर ऑन, बट स्पेसिफिकली यू नीड टू हैव विजिट वीजा। और फिर ये सारी चीज़ें विजिट वीजा पर आप ये लाइसेंसिंग क्लियर करोगे, फिर जब आपको आपका एम्प्लॉयर हायर कर लेगा, कोई भी एम्प्लॉयर, क्योंकि आपके पास एक डेंटल हाइजीनिस्ट की डिग्री होगी और लाइसेंस होगा, आपको कोई भी एम्प्लॉयर हायर करेगा तो फिर आपको इन स्पेसिफिक वीजा टाइप्स में से आपको कोई वीजा मिलेगा। ठीक है, अगर आप ग्रीन कार्ड पे हो या ऑलरेडी आप वहां पर एक परमानेंट रेजिडेंट हो तो ऑब्वियसली कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। एवरेज सैलरी रेंज एंट्री लेवल हो, फॉर एग्जांपल आपने लाइसेंस क्लियर किया और आप जो है आपने स्टार्ट कर दिया तो यू विल अर्न अप टू 60,000 USD पर ईयर। ठीक है, अगर हम इसको PKR के अंदर कन्वर्ट करें तो लेट्स सी ये कितने पैसे बनते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए रियलिस्टिकली हम कितने पैसे बना सकते हैं। हम 1,67,00,000, तो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ अमाउंट। जितना आप इन्वेस्ट करोगे, अगर 15-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 करोड़ और इतने लाख आप कमा लोगे, विच इज ऑब्वियसली अ ग्रेट अमाउंट विद अ मिनिमल सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। सो इफ और फिर एक्सपीरियंस के साथ ऑब्वियसली पैसे बढ़ जाते हैं। So, if you're very interested about this pathway, don't miss this pathway and definitely look into it. Stay updated with that sort of a website that I'm going to tell you. This is Indiana की official website और इसके अंदर dental hygienist Indiana की specific website है और इन्होंने डेंटल हाइजीनिस्ट बाय एग्जामिनेशन का पूरा पाथवे बताया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे जिसकी एप्लीकेशन फीस होगी आपकी $100। पॉजिटिव रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, आप एप्लीकेशन कंप्लीट करोगे जिसकी कोई फीस नहीं होगी। फिर आप CPR कार्ड होगा, लाइसेंस एप्लीकेशन फीस होगी जिसकी ₹100 होगी, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होगा, डॉक्यूमेंटेशन होंगी, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होंगे, सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लीशन होंगे, CPR कार्ड होंगे, नेशनल बोर्ड स्कोर्स होंगे, क्लिनिकल एग्जाम स्कोर्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी। आगे इन्होंने बताया हुआ कि एप्लीकेशन फीस इज $100 विच इज नॉन डिपेंडेबल। ठीक है, फिर आप क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक केस के आप लिंक खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? If you answer yes to any questions on the application, explain fully in sort of statements. कोई नेम चेंज का मसला है तो वो आप एक्सप्लेन करोगे। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आप अपनी यूनिवर्सिटी से डीन से साइन करवा के ये सारी चीज़ें भेजोगे। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी साथ भेजोगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि AHA अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन से एक्रेडिट होना चाहिए, जो कि स्पेसिफिकली डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में करवाते भी हैं।
या आप वहाँ पर भी अगर आप विजिट पे हो तो वहाँ कर सकते हो। इट्स अ स्मॉल, लाइक 3-4 घंटे का कोर्स होता है और कुछ वीक्स का। फिर एग्जामिनेशन में आपने नेशनल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, क्लिनिकल एग्जाम्स होते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके सारे पैसे वैसे सब हैं। तो आप इस वेबसाइट पे स्टिक टू रह सकते हो और यहाँ से आपको कंप्लीट चीज़ें पता चलेंगी। इफ यू थिंक दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय इंस्टाग्राम चैनल विच इज NW Consulting 101, and don't follow my Instagram channel, and don't forget to subscribe this channel because I am going to come with a lot of other pathways, specifically the Massachusetts, the Minnesota, and other states in USA that help you practice as a dentist or dental hygienist without some sort of licensure pathway or without spending a lot of money in sort of a degree or repeating it. So, yes, if this is you, don't forget to subscribe. Don't forget to stay connected. Thank you so much, everyone.